सुबह 6 बजे से यहाँ बैठे हुए मेरे छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहा है। वहाँ मेरा बच्चा रो रहा है मेरे लिए। कुछ खाना पीना भी नहीं अच्छा लग रहा। नहीं किसी से भी नहीं हुई। जब सुबह 6 बजे आए तो उन्होंने बोला हम 10 बजे खुलेगा बॉर्डर, 10 बजे खुलेगा। 10 बजे के इंतजार में अभी ये टाइम हो गया, इंतजार करते करते अब खुले अब खुले। अब पता ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं बता रहा। बस बहुत परेशान हो रहे हैं, बच्चे अलग परेशान हो रहे हैं, गर्मी में परेशान है हमारे बच्चे भी। मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया, मेरे हस्बैंड को भेज दिया। मुझे भी जाना है, मुझे भी इजाज़त नहीं यहाँ से जाने की। मेरे 3 बच्चे, मेरा एक बेटा है, ये भी अपने पापा को देख के जिद कर रहे हैं, रोते हैं, इनको संभाला नहीं जाता मुझसे। ये भी रोते हैं, बाबा के पास जाना है अपने। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਡੈਡਲਾਈਨ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿ ਔਰ ਇਸ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੈਡਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਹੀਕਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਡੀਕ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੋ 75-80 ਟਰੱਕ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। तो काफ़ी वड्डी गिनती में हजे भी लोग इत्थे मौजूद ने जो पाकिस्तान परतन लिए इत्थे आए ने। आपको पता नहीं था डेडलाइन खत्म हो चुकी 30 तारीख को? सब कुछ पता था। वहाँ से हमें जो एग्जिट जो है सोमवार को मिली है, मंडे को सुबह 6 बजे के आए हुए हैं। ना कोई अंदर छोड़ रहा है ना बाहर छोड़ रहे हैं। गर्मी में हालत ख़राब हो गई। क्या जवाब क्या दिया जा रहा है आपको? फिलहाल तो कुछ जवाब नहीं है, अभी कोई जवाब नहीं। पति पत्नी माँ पुत भैन भरा ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੰਝੂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। तो एक मोहतरमा साढ़े नाल मौजूद ने जो इत्थे पहुँचे ने, तो उन्होंने तो जरूर जानना चाहूँगे आखिरकार तुहाडी दास्तान की सी, कित्थों दे रहने वाले, कदों भारत आए थे? जी मैं इंडियन नेशनल हूँ और मेरी शादी कराची में हुई है। मेरे पास मैं हाफ पाकिस्तानी नेशनल हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बड़े बच्चे जो हैं मेरे पाकिस्तान में मेरे शौहर के पास ही हैं, और मेरा बड़ा बेटा जो है वो पैरालाइज है, 2 साल से उसका एक्सीडेंट हो गया था तो वो पैरालाइज हो गया है। और ये 2 छोटे बच्चे हैं तो ये मेरे पास हैं। अभी 1 महीने पहले ही आए थे हम अपनी मदर से, अपनी फैमिली से मिलने के लिए। हमने सोचा चलो अब नाना नानी से मिल लेंगे बच्चे, हम भी अपनी अम्मी को देख लेंगे, उनकी तबीयत सही नहीं रहती। फादर की मेरी डेथ हो गई है, उनको 4 साल हुए अभी डेथ हुए हुए। अब जो है ये पहलगाम का हमला हो गया, उसमें जो 48 घंटे में अल्टीमेटम दे दिया गया कि जब पाकिस्तानी आप छोड़ के चले जाएँ, अपने देश चले जाएँ वापस। अब बताएं, अब हम यहाँ आवाम जनता परेशान हो रही है। मुझे अपने बच्चे के पास जाना है, मेरा बच्चा इतना परेशान है, तकलीफ़ में पैरालाइज है मेरा बेटा, मैं परेशान हूँ उसको देखने के लिए। वो तकलीफ़ में रो रहा है, मम्मा आ जाओ, उसका सारा काम मैं ही करती हूँ। ये छोटे बच्चे हैं, ये मेरे पास है, मैं बहुत परेशान हूँ। हमारे लिए कोई ऐसी उम्मीद बनाए है नहीं, बच्चों को लेके आऊँगी, बच्चे तो पाकिस्तानी है ना, मुझे जाने में दिक्कत हो रही है। मैं हमारे लिए आसानी पैदा करें, हमें दोनों बॉर्डर क्रॉस करने दिए जाएँ आसानी से, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, मैं अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊं, अपनी फैमिली के पास। पता नहीं था ये 30 तारीख तक है, 30 तारीख
जी नहीं, हमें 30 तारीख का मालूम नहीं था, 1 मई का था कि 1 मई तक है बॉर्डर क्रॉस करने की आखिरी तारीख। और पासपोर्ट होल्डर हो इसलिए आपको जाने नहीं देंगे, बच्चों को इजाज़त मिल जाएगी जाने की। जी तो आप छोटे बच्चों को अभी हम नहीं, छोटे बच्चों को दे नहीं सकते ना, ये बच्चे मेरे बगैर रह सकते हैं। 2 बड़े बच्चे थे, वो मेरे बगैर रह जाते तो उनके पापा ले गए उन्हें, ये नहीं रह सकते। और अब वो तो बड़ा बेटा तो रह ही नहीं सकता, वो भी छोटों से ज़्यादा छोटा है, पैरालाइज हो गया, उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो बेड पर है। उसका खाना पीना हर चीज़ मैं ही देखती हूँ, बहुत परेशानी होती है। मेरे शौहर काम पे चले जाते तो मुझे ही सब कुछ देखना पड़ता है उसका, अपने बेटे का। तो अभी जो हालात पैदा हुए हैं, जो तनाव पैदा हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? जो घटना घटी है, घटना घटी है, देखिए उनके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, जो शहीद किए गए हैं नागरिकों को, उनको टेररिस्टों ने जो उनके साथ किया है वो बहुत बुरा किया है। हमें भी उनसे दिल से अफसोस है उनके लिए जो शहीद किए गए हैं वो लोग। लेकिन उन टेररिस्टों को जो है पाकिस्तान भी और इंडिया भी दोनों मिलकर उनको ऐसी सज़ा दे, कड़ी से कड़ी सज़ा दे, ताकि जो है उनकी रूह कांप जाए। वो ऐसा कुछ करने के बारे में सोचे नहीं, वो भी हमारी तरह आम नागरिक थे, आम जनता थे, वो भी खुशियाँ मनाने घूमने फिरने गए थे अपनी फैमिलीज़ के साथ। अब इसी तरह आप बताएं, जैसे पहलगाम में हमला हुआ उस तरह अब उसका बदला जो है हमसे लिया जा रहा है। हमारा क्या कसूर है इसमें? हमें बहुत परेशानी हो रही है, हमें बहुत परेशानी हो रही है। हिंदुस्तान से और पाकिस्तान से अपील है, हमें जाने की इजाज़त दी है। हम अपने शौहर अपने बच्चों के पास अपने मुल्क जाना चाहते हैं। परेशानी है, वो बहुत परेशान है। मैं अपने लफ्ज़ों में कुछ बयान नहीं कर सकती, बस बोला नहीं जा रहा मुझसे, मैं बहुत परेशान हूँ। हम सुबह 6 बजे से यहाँ बैठे हुए, मेरे छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहा है, वहाँ मेरा बच्चा रो रहा है मेरे लिए। कुछ खाना पीना भी नहीं अच्छा लग रहा, नहीं किसी से भी नहीं हुई। जब सुबह 6 बजे आए तो उन्होंने बोला हम 10 बजे खुलेगा बॉर्डर, 10 बजे खुलेगा। 10 बजे के इंतज़ार में अब ये टाइम हो गया, इंतज़ार करते करते अब खुले अब खुले, अब पता ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं बता रहा। बस बहुत परेशान हो रहे हैं, बच्चे अलग परेशान हो रहे हैं, गर्मी में परेशान है हमारे बच्चे भी। एक होर जोड़ा इस वेले अटारी सरहद ते इंतज़ार कर रहा वतन वापसी का, पर बेहद भावुकता भरे माहौल है, क्योंकि ये माँ अपने बच्चों को जान का इंतजार कर रही है, अपने परिवार को जान का इंतजार कर रही है, क्योंकि 12 साल पहला पाकिस्तान च विआह करवाया सी, हाले तक पासपोर्ट जोड़ा है इंडियन है, इस करके जान च दिक्कत का सामना करना पै रहा है। की नाम है जी? तो आपका नाम क्या है? शारमीन इरफान। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं अपनी मदर से मिलने आई थी, यहाँ 1 महीना भी सुकून से नहीं गुजरा और यहाँ से जाने का कह दिया। मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया, मेरे हस्बैंड को भेज दिया। मुझे भी जाना है, मुझे भी इजाज़त दे यहाँ से जाने की। मैं नहीं रह सकती, मेरी बच्चियाँ रो रही हैं, बहुत रो रही हैं वहाँ पे। मेरे 3 बच्चे, मेरा एक बेटा है, ये भी अपने पापा को देख के जिद कर रहे हैं, रोते हैं, इनको संभाला नहीं जाता मुझसे। ये भी रोते हैं, बाबा के पास जाना है अपने। हमें इजाज़त दें, परिवारों को जुदा ना करें, माँओं को बच्चों से जुदा ना करें, बाप को बच्चों से जुदा ना करें, हमें यहाँ से जाने दें, हमें परेशान ना करें। पहलगाम हमला हमने नहीं कराया, हमें मत परेशान करें, हम बहुत परेशान हैं। हम सुबह 6 बजे से यहाँ आए, 1 बज गया है, हम बहुत परेशान हैं, धूप में गर्मी में यहाँ खड़े, हमें यहाँ से जाने दें। 1 तारीख तक का समय दिया गया था सरकार की तरफ से। आप ये बताएं, 30 तारीख का समय सरकार ने दे दिया, तो जो जिसके 24 घंटे का सफ़र है, कोई गुजरात से, कोई कहीं से भी आता है, उसको वक्त लगता है आने में। मुझे भी यहाँ वक्त लगा है आने में। जैसे ही मुझे वीज़ा मिली है, पाकिस्तानी हाई कमीशन ने मुझे वीज़ा दी है। जब पाकिस्तानी हाई कमीशन ने मुझे वीज़ा दे दिए कि मैं उनके मुल्क जा सकती हूँ, तो आप क्यों यहाँ रोक रहे हैं मुझे? अभी कोई आपकी अधिकारियों से बातचीत हुई है? नहीं, मेरी किसी से अभी बात नहीं हुई। पाकिस्तान में अपनी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी माँ है, उनकी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। मेरी बच्चियों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है पाकिस्तान कराची में। तो अभी अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया आपको? नहीं, कब से खड़े हो आप? मैं यहाँ सुबह 6 बजे से खड़ी हूँ सर। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं धूप में या गर्मी में बहुत परेशान हूँ। मुझे बीपी का मसला है, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे कुछ खाया पिया भी नहीं है, मैं कुछ खाऊंगी तो अपनी दवा खाऊंगी बीपी की। ब्लड प्रेशर मेरा बहुत बढ़ता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे यहाँ से जाने दें। इन हालातों को आप कैसे देखते हैं? एक घटना के बाद हालात इतने बिगड़ गए हैं, जो पहलगाम की घटना के बाद एक घटना जो हुई है वो आतंकवाद की वजह से हुई है, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दें। आम जनता को क्यों इतनी परेशान कर रहे हैं?
क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों माँ को बच्चों से जुदा कर रहे हैं, आतंकवाद की सजा हमें क्यों दे रहे हैं। तो कुछ नहीं, मुझे आज यहाँ से जाना है, मुझे हर हाल में जाना है, मैं अपने बच्चे के साथ जाऊँगी, मुझे मेरी बच्चियों के पास जाना है, मुझे आज जाना है, हर हाल में जाना है, मुझे परमिशन दिलाएं, आप सब लोग मेरी मदद करें, आप मुझे इजाज़त दिलवाएं यहाँ से जाने की। मेरी हुकूमत से अपील है, आप सबसे अपील है मेरी, हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि मुझे यहाँ से भेज दें। ਤੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸੇਕ ਉਹਨਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਧੀ ਉੱਧਰ ਵਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਧਰ ਵਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿਛੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿਛੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਂਗਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ।